All right. Good morning, everyone. How are you doing? I hope you all are doing well at your places. So today we will be starting with exercise 14.2. I'm so sorry, 14.3. I hope you all have done exercise 14.2. Right? Exercise 14.3 we are going to start today. Okay? In this exercise, we will be doing graphical representation of data. Graphical representation of data. How do we represent statistical data graphically? We will be talking about bar graphs. We will be talking about histograms of uniform width and of varying width, and then frequency polygon. Three things we are going to talk about. Bar graph you must be knowing. I hope you remember what are bar graphs. You have already studied bar graphs in 8th standard, right? So what are bar graphs? When we want to represent frequency and frequency with respect to given data, then we use bar graphs. In bar graphs, we are going to use rectangles. Okay, we will be using rectangles of uniform width. Okay, if I am going to talk about, we will be making graphs, bars of like this, and this width will be uniform, right, for the data. But when do we need to make bar graph, when do we need to make histogram, that's what I am going to talk about. When we have discrete data, when data is not grouped, okay, जब data group नहीं होता, you remember what is group data? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. जब classes में data divide होता है तो वो groups होते हैं. So grouped data we will be representing using histograms. और बार ग्राफ्स में हम कैसा डेटा यूज करेंगे? डिस्क्रीट, व्हेन डेटा इज नॉट डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. इसको जस्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल. ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सरसाइज ओनली. एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग so that it will be easier for you to understand, right? So first question we have: a survey conducted by an organization for the sense of illness and death among the women between ages 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage. देखो ये फिगर है, just look here, it is the figure. I am just giving you the information which has been provided to us. Our first question, right? So it is, look here, S number we have 1 2 3 4 5 6. Then we have causes, reproductive health conditions. I am not writing for reproductive health condition. Neuropsychiatric conditions. Then we have injuries. Then we have cardiovascular conditions. Okay, then we have respiratory conditions. And then we have other causes. Okay, and frequency, female fertility rate in percentage is given to you. Female fertility rate 31.8%. I'll just let you know what is this data talking about. 25.4, 12.4, 4.3, 4.1, 22.0. ओके, देखो सबसे पहले ये डिस्क्रीट डेटा है. वाई दिस इज डिस्क्रीट डेटा? क्योंकि डेटा हैज नॉट बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. डेटा हैज नॉट बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स हियर. Okay, data has not been divided into groups here, so it means it is a discrete data, right? Okay, now this is not a discrete data, this is a group. I'm so sorry, this is not group data. अगर group में होता तो ऐसे होता 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 like this, right? लेकिन यहाँ पे डेटा डिस्क्रीट है, यानी आपको देखो क्या दिया हुआ है. फर्स्ट जो हमको कंडीशन दी हुई है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. उसमें आपको एक वैल्यू दी हुई है 31.8%. न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस में एक वैल्यू दी हुई है. इंजरीज में 12.4, कार्डियोवास्कुलर करंट 4.3. तो ये डेटा जो है हमारा वो क्या है? डिस्क्रीट डेटा है. तो डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ बार ग्राफ्स. ठीक है, बार ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जस्ट टेलिंग यू. बार ग्राफ यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस लेंगे. दिस इज ओ एक्स वाई. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो हमने ऑब्जर्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो आर एच सी, ओके, आर एच सी.
ऑलराइट, सो RHC इज व्हाट? RHC इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो पहले देखो यहाँ पे मैं डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो RHC आई एम राइटिंग, यू नीड टू राइट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, राइट देन NC। अब देखो मैंने बोला बार जो मैं बनाऊंगी दैट इज गोइंग टू ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका जो ग्राफ्स होते हैं उसमें 1 स्क्वायर विल बी देयर विच इज ऑफ विड्थ 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, राइट। जो हमारे ग्राफ के अंदर स्क्वायर्स बने हुए होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ ब्रेथ 1 सेंटीमीटर होती है, स्क्वायर होता है, तो साइड 1 सेंटीमीटर होती है। तो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे देखो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन अलग चीज है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन अलग चीज है। इसका मतलब देयर शुड बी अ गैप, और वो गैप भी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो देखो RHC के लिए मैंने एक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग, इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपना एक 1 यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। RHC मैंने इसमें डिनोट किया, एंड देखो यहाँ पे जो डेटा है, जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है दैट आई एम गोइंग टू टेक ऑन y axis 10, 15, 20, then we have 25, then we have 30, and then 35. It's like this. This is 35. Okay. यहाँ पर भी 1 यूनिट विल रिप्रेजेंट 5%। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस पे क्या हो रहा है? 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 5% को रिप्रेजेंट कर रही है। इज दैट क्लियर? सो देखो अब RHC पे कितना दिया हुआ है? 31.8%। तो हमको बार बनाना है, और बार की विड्थ सेम होनी चाहिए सब केसेस में, और गैप भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। RHC पे इट इज 31.8। सो सपोज 31, आई होप यू ऑल नो हाउ टू रिप्रेजेंट 31.8। दिस इज 30, दिस इज 35, राइट। सो 31.8 समवेयर हियर, ठीक है। नाउ न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4। तो देखो मैं यहाँ गैप छोड़ूंगी क्योंकि ये बार्स है और डिस्क्रीट डेटा है, दिस इज डिफरेंट, कनेक्टेड नहीं है, ग्रुप्स नहीं है, तो यानी कि गैप भी होना चाहिए बार ग्राफ में, एंड दैट शुड बी यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि तुमने RHC और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन जो है उनके बीच में 2 यूनिट का तुमने गैप छोड़ दिया, नहीं। अगर आप 1 यूनिट का गैप छोड़ रहे हो तो सब जगह 1 यूनिट का गैप होगा, किसमें? बिटवीन द बार्स। अगर आप 2 यूनिट्स का गैप ले रहे हो तो एवरीवेयर यू नीड टू टेक दिस गैप ऑफ 2 यूनिट्स, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट वी हैव न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4। तो देखो सपोज 25.4 इज समवेयर हियर, सपोज ओके। देखो मेरा थोड़ा सा आई एम नॉट मेकिंग इट यूजिंग अ स्केल, तो ये यूनिफॉर्म विड्थ नहीं आ रही है, बट यू शुड नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि यूनिफॉर्म विड्थ ही होनी चाहिए, है ना। ये विड्थ अगर आप 1 यूनिट ले रहे हो तो दूसरे बार की विड्थ भी 1 यूनिट होनी चाहिए, तीसरे की, और उनके बीच में गैप भी 1 यूनिट का ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट का गैप, दूसरे में 1 यूनिट का गैप, तीसरे में। नाउ थर्ड इज इंजरीज 12.4। सो देखो वापस गैप छोड़ूंगी, एंड सपोज 12.4 इज हियर। आप जब ग्राफ यूज करोगे, these things we have already studied in 7th and 8th standard. So this is RHC, this is NC, this is injuries, right? Injuries में देखो ये कितना है? 12.4, this is 25.4, and this is 31.8%, like this, है ना। ऐसे cardiovascular conditions, and like this you will be representing this data through bar graph. I hope this is very much clear to all of you, right? Bar graphs हमने already पढ़े हैं। सो बार ग्राफ में आपको क्या ध्यान रखना है कि विड्थ ऑफ द ग्राफ, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल शुड बी सेम। ये जो बार्स हैं इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लेंथ जो होगी इट डिपेंड्स। देखो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बट ब्रेथ शुड बी यूनिफॉर्म, और इन बार्स के बीच का गैप भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ 0 से इसको टच करके बना दिया, नो, इट शुड बी यूनिफॉर्म। इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए?
यूनिफॉर्म होना चाहिए. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. ऑलराइट, सो सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम. यू नीड टू मेक bars, bar graphs. Okay, now let's just talk about histogram. हिस्टोग्राम क्या होता है, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक ओनली, है ना. हिस्टोग्राम, आई जस्ट डिस्कस मोर क्वेश्चंस, you don't worry. Okay, I am taking example question number 5. Okay, I will discuss all the questions, don't worry, but I just want to give you what do you just give you information, what do you mean by bar graph, what do you mean by histogram, just an idea you should get. Okay, so histogram, I am just taking an example, just look here. जब डेटा कंटिन्यूअस होता है, अभी बताती हूँ क्या होता है कंटिन्यूअस. let's take this example. Suppose now this is 800 to 900 and this is 900 to 1000 and this is lifetime in hours. The following table gives a lifetime of 400 neon lamps. This is lifetime in hours, मतलब एक नियॉन बल्ब 300 to 400 आवर्स चलता है. कितने नियॉन बल्ब्स है एंड नंबर ऑफ बल्ब्स तुमको दिए हुए, नंबर ऑफ लैम्प्स. आई एम सो सॉरी. सो इट इज 14, अभी समझा रही हूँ क्या है. 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48. जस्ट लुक हियर. देखो ये क्या डेटा है. दिस डेटा इज सेइंग 14 लैम्प्स वर्क फॉर 300 to 400 आवर्स. लाइफ टाइम इज देयर. 56 bulbs lifetime is 400 to 500 hours. 60 bulbs lifetime is 500 to 600 hours, like this. अब इसके अंदर हम बार्स नहीं बना सकते क्योंकि बार ग्राफ में क्या होता था, देयर वॉज अ गैप. बार ग्राफ में क्या होता था, गैप होता था. यहाँ पे हम गैप कर ही नहीं सकते. देखो कैसे, जस्ट लुक हियर. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, है ना, सो लेट्स टेक दिस. This is O X O Y. Here देखो मैं 1 यूनिट को 100 लेके चल रही हूँ, मतलब देखो 100 आवर्स. यहाँ पे x एक्सिस पे 300 to 400, 400 to 500. अब एक चीज ध्यान रखना, सपोज मैंने ये मेरी यूनिट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ये क्या लेके चल रही हूँ मैं. 1 यूनिट लेंथ लेके चल रही हूँ. दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो लाइक दिस. अगर सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने बोला दिस इज 300, this is 400, this is 500. Do you think it's correct? No, it's not correct. Reason being, आपने बोला यूनिट लिखोगे आप x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो रहा है, 300. आई एम सो सॉरी, 100 आवर्स. आप 1 सेंटीमीटर को 100 आवर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर देखो यहाँ तो सीधा 0 to 300 आ गया और उसके बाद आप 100 बोल रहे हो. यानी 1 यूनिट तो 100 ही होना चाहिए था, राइट. इसका मतलब आपको 0 to 100 होना चाहिए था, फिर 100 to 200, फिर 200 to 3. अगर ऐसा करते तो क्या होता, आपका डेटा तो यहाँ से शुरू हो रहा है, इतना आपका ब्लैंक जाता, राइट. सो वी विल नॉट डू इट लाइक दिस. वी विल मेक अ थिंग. आपको याद है, एक ब्रेक बनाएंगे. कैसे, जस्ट लुक हियर. ये डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है 300 तक का, यानी हम यूनिट नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. फिर यहाँ से हम ले लेते हैं 300 to 400, फिर 400 to 500. ये गैप शुड बी इक्वल. मैंने डिफाइन किया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 आवर्स. मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को 100 आवर्स के इक्वल ले रही हूँ. तो 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, then 600, then 700, then 800, 900 and then we have 1000. I hope this is clear to you. अभी देखो यहाँ पे 10 का गैप ले लें, एक यूनिट को 10 ले लें. सो जस्ट लुक हियर, 10 लेंस, है ना. आप y एक्सिस पे भी डिफाइन कर रहे हो. क्या डिफाइन कर रहे हो, आई एम गोइंग टू राइट दिस हियर क्योंकि यहाँ पे मुझे गैप को बनाना पड़ेगा. सो x एक्सिस पे आप क्या किया, आपने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 आवर्स रिप्रेजेंट किया. और y एक्सिस पे व्हाट हैव यू रिप्रेजेंटेड, व्हाट आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लैम्प्स. और 1 यूनिट, 1 जो स्क्वायर का जो लेंथ है वो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर में किसके इक्विवेलेंट ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर इज विल रिप्रेजेंट व्हाट, 10 बल्ब्स. देखो तो ये 10 बल्ब्स, तो दूसरा 20 ही होगा. ऐसे नहीं होगा कि 14, 56 आप मर्जी से.
No, this is 10, this is 20, let's say this is 30, then we have 40, then we have 50, then we have 60, then we have 70, and then we have 80 and 90 also. 90 also we need. So this is suppose 80 and this is suppose 90. Okay, okay. Now देखो 300 to 400 14, सपोज 14 होगा हमारा यहाँ पे. आई होप यू नो दिस थिंग. इनके बीच में 10 लाइन्स होगी तो 10, नेक्स्ट लाइन विल बी 11, 12, 13, 14. सो 300 to 400 14. अब देखो 400 to 500 इज 56. डेटा कंटिन्यूअस है, 400 से खत्म हो रहा है, 400 से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी गैप तो होगा ही नहीं, है ना. 400 to 500 विल बी 56. अब 400 यहाँ है, 500 यहाँ है. आपको दो बार 400 नहीं लिखना है कि आपने 300 to 400 एक बार लिखा, फिर 400 वापस गैप छोड़ के 400 to 5. नो, 300 दिस इज 400, 400 to 500 विल बी 56. जस्ट लुक हियर. सपोज हमारा 56 है यहाँ, ठीक है. 56 between 50 and 60, right? Somewhere between. So 400 to 500. Clear? 56. तो मैं just writing it here. 56 है यहाँ पे ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए. Now 500 to 600 will be 60. अभी 60 is here. 500 to 600. Is that clear? Then we have 600 to 700, 86. 86 होगा somewhere here. तो देखो 600 to 700 लेना है, यानी गैप तो हम छोड़ ही नहीं सकते. जहां से डेटा खत्म हो रहा है हमारा 400 के बाद वापस 400 to 500, देन 500 से खत्म हो रहा है, नेक्स्ट 500 से शुरू हो रहा है. इट्स लाइक दिस. सो वी आर गोइंग टू मेक अ हिस्टोग्राम लाइक दिस. यानी कि हिस्टोग्राम कब बनाते हैं? हिस्टोग्राम तब बनाते हैं जब डेटा कंटिन्यूअस होता है, राइट. डेटा जब कंटिन्यूअस है उसमें भी हम बार्स बना रहे हैं, लेकिन वो जो बार्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उनके बीच में गैप नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेटा जो है वो कंटिन्यूअस है. 400 से खत्म हो रहा है, 400 से ही स्टार्ट हो रहा है, और आप ग्राफ में 400 दो बार नहीं लिखोगे, राइट. एंड टेक केयर ऑफ द यूनिट विच यू आर डिफाइनिंग. ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 4. देखो सर. Now what have you noticed? यहाँ पे width सेम थी, 100 का गैप था हर जगह. अभी तुम लोग हिस्टोग्राम पढ़ोगे, हिस्टोग्राम यू आर गोइंग टू स्टडी वेयर दिस width will not be same. तो उसमें हम क्या करेंगे, that I am going to discuss. But before that I just want to discuss question number 4 with you. देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्रॉब्लम है, just telling you what. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter, है ना. लेंथ इन मिलीमीटर, लीव्स की लेंथ दी हुई है 118 to 126. देन वी हैव 127. देखो यहीं से आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. नाउ जस्ट लुक हियर, दिस इज 145, 153. देन वी हैव 154, 162. Then we have 163, 171. Then we have 172, 180. Okay. Now number of leaves. Just look here. Number of leaves. Number of leaves is given to you 3. Number of leaves is equals to 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2. Now just look here. इसको हमें हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, बट एक प्रॉब्लम है इस डेटा में. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस डेटा? यू रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, डेटा शुड बी कंटिन्यूअस. 118 to 126, तो यहाँ पे भी 126 आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है 127. गैप आ जाएगा ये तो, राइट. फिर 127 to 135, यहाँ पर भी डेटा देखो 135 आना चाहिए, आ क्या रहा है 136. तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मेक द डेटा कंटिन्यूअस फर्स्ट. वी नीड टू मेक द डेटा कंटिन्यूअस फर्स्ट. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस डेटा कंटिन्यूअस? हाउ आर वी गोइंग टू मेक दिस डेटा कंटिन्यूअस? कैसे बनाएंगे कंटिन्यूअस? जस्ट टेलिंग यू दैट. सो देखो यहाँ पे विड्थ तो सेम है,
118 एंड 126 अगर आप देखते हो, जस्ट लुक हियर, गैप इज ऑफ 8. 127 एंड 135 अगेन 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, सब जगह डिफरेंस तो 8 का है, विड्थ तो सेम है, बट ये डेटा कंटिन्यूअस नहीं है, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है. सो इट मीन्स हिस्टोग्राम में गैप आ जाएगा और हिस्टोग्राम्स में तो गैप नहीं होता है, राइट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू मेक दिस डेटा कंटिन्यूअस. कैसे बनाते हैं कंटिन्यूअस? आई एम जस्ट टेलिंग यू. फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द स्टेप्स हियर, ताकि मैं यहाँ पे आपको दूसरी टेबल बना के दिखा सकूं. फर्स्ट स्टेप, इसकी अपर लिमिट और सेकंड लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस निकालेंगे. लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड 126. आप उसी की भी देख लो, 1 का ही गैप है, 144 145 गैप, 153 1 गैप इज 1. जो भी इनका डिफरेंस है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, है ना. अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और उसके नेक्स्ट वाले के लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ हम लेते हैं, विच इज 0.5. आई होप क्लियर टू यू. अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस होता, जैसे 135 और यहाँ 140 होता, तो 140 माइनस 135 5 होता, उसका हाफ लेते, विच इज 2.5. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है? जितनी भी लोअर लिमिट्स है उसमें से माइनस कर दो 0.5 और जितनी भी अपर लिमिट्स है उनमें 0.5 ऐड कर दो. अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट. लुक हियर, मैंने बोला लोअर लिमिट्स में से माइनस कर दो. 118 माइनस 0.5 यू विल गेट 117.5. जितनी भी लोअर लिमिट्स है, यहाँ पे 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5. 0.5 सब्ट्रैक्ट करें. 0.5 में क्यों? क्योंकि इन दोनों की गैप का हाफ लेना होता है, इन दोनों के डिफरेंस का. So 127 minus 126 is 1 divided by 2, you will get 0.5. Right? Now this is 162 and this is 171.5. कर दिया. Lower limits में से we have subtracted 0.5. Now from upper limits we are going to add 0.5. 126 plus 0.5 you will get 126.5. 135.5. Just look here. 144.5. 153.5. जितनी भी अपर लिमिट्स थी उसमें we have added 0.5. This is what 162.5. This is what 171.5 and this is 180.5. Okay, frequency वो ही रहेगी जो थी, number of leaves. So this is length in millimeter and this is number of leaves. 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. राइट. अब इसका हिस्टोग्राम बना देंगे. अब डेटा हमारा कंटिन्यूअस हो गया. पहले डेटा को कंटिन्यूअस करना है और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाना है. सो हाउ आर वी गोइंग टू मेक हिस्टोग्राम? यू रिमेंबर व्हाट वी हैव डन? हमने अभी अभी क्वेश्चन किए थे हिस्टोग्राम के. क्या कर रहे थे हम? उसके अंदर डेटा अगर कंटिन्यूअस है, सो जस्ट लुक हियर हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. देखो, सिर्फ समझ नहीं आएगा. यू नीड टू ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ एंड देन शो इट टू मी. ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे मैं लूंगी नंबर ऑफ लीव्स. यू नीड टू रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑल्सो. ओके, कि आप वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो. एंड दिस इज लेंथ, है ना. यहाँ लिख देते हो लेंथ इन मिलीमीटर. ओके, नाउ जस्ट लुक हियर. देखो गैप कितने का आ रहा है. अगेन देखो आप कैसे निकालते हो विड्थ कितनी है. आप क्या करते हो? लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. देखो 16 माइनस 7 विल बी व्हाट? 16 माइनस 7 विल बी 9 एंड देखो 9 का गैप आ रहा है हर जगह. 9.0 यहाँ पर भी गैप 9.0 यानी विड्थ तो सेम है. ओके, यानी हम 1 यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 9 मिलीमीटर. 1 यूनिट विल रिप्रेजेंट 9 मिलीमीटर. अब पता है किंग क्यों बनाना है? क्योंकि डेटा 117 से, तो यहाँ से हम किंग बना रहे हैं. ओके, वी आर गोइंग टू मेक किंग. देन वी हैव 117.5. इट्स लाइक दिस. जस्ट अ मोमेंट. इट इज गोइंग टू बी ऐसे. ओके, दिस इज 117.5. देन 9 यूनिट्स का गैप हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 126.5. उसमें 9 ऐड करोगे यू विल गेट
135.5. Then we have 144.5. Then we have again 9, 153.5. Like this you will represent. और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. आप one unit can represent one leaf, or if you wish you can use one unit will represent two leaves. जैसे भी आपको लेनी है स्केल. जैसे let's say अगर मैं ये ले रही हूँ 2, तो ये हो गया 4, this is 6, this is 8, this is 10, and then we have 12 also. तो आपको यूनिट जरूर शो करनी है. एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर. और y एक्सिस पे क्या हो रहा है, y एक्सिस पे यू नीड टू टेक 1 यूनिट. y एक्सिस पे वी हैव 1 यूनिट रिप्रेजेंट, और 1 सेंटीमीटर आई मस्ट से यूनिट यू नीड टू डिफाइन. 1 सेंटीमीटर will be equivalent to what, 2 leaves. Okay, now start. 117 to 126.5 we have 3. 2 और 4 के बीच में 3 होगा, सपोज यहाँ पे है. So this is going to be 126. Now 126.5 to 135.5 we have, देखो गैप नहीं होगा, 126 to 135 we have 5. So 5 का होगा 4 और 6 के बीच में, सपोज here. तो this it's like this. ये विड्थ सेम होनी चाहिए. मेरे पास ग्राफ नहीं है इसलिए मेरी वेरिंग आ रही है, बट it is going to be, you know, width will be same. Width will be same. Now 135 to 144 it is going to be 9. 9 का होगा 8 और 10 के बीच में, सपोज here. तो आप ऐसे बनाओगे. It's like this. I hope this is very much clear to you. तो आपको दो चीजें याद रखनी है. पहली चीज, whenever you are talking about बार ग्राफ, तो बार ग्राफ के अंदर क्या होता है बेटा, बार ग्राफ में we will be drawing bars of uniform width, लेकिन वो हम डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज करते हैं, यानी डिफरेंट डेटा के लिए. डेटा ग्रुप्स में नहीं डिवाइडेड होता है. तो आप क्या करोगे, बार्स के बीच में गैप शुड बी यूनिफॉर्म. लेकिन जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम में वी रिप्रेजेंट ग्रुप डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं. और कॉन्टिन्यूस देखो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है. ओके, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है. उसके लिए वी विल बी ड्राइंग हिस्टोग्राम. तो ऑब्वियसली क्योंकि गैप होगा ही नहीं, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है. बट अगर वो डेटा कंटिन्यूस नहीं है और विड्थ सेम है, देखो अभी विड्थ डिफरेंट होगी, उसके लिए हम कुछ और करेंगे, दैट वे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. बट अभी ये देखो कि विड्थ सेम है, सब जगह गैप सेम है. तो आप क्या करोगे, लेकिन डेटा कंटिन्यूस नहीं है, तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल का डिफरेंस का हाफ वी विल टेक. जो भी होगा, जैसे 5 का डिफरेंस है तो 5 का हाफ लेंगे 2.5. ऑल द लोअर लिमिट्स में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2.5. जैसे अभी एग्जांपल लिया है, दैट डिफरेंस का जो हाफ है वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट में वो ऐड कर देंगे. तो डेटा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस. और डेटा कंटिन्यूस होने के बाद द वे वी वर ड्रॉइंग histograms we will be drawing in the same way. I hope this is very much clear to you. I request all of you to try these questions in your graph copy and surely send it to me. So that's it for today. Thank you so much.